स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, सब्जेक्ट निकालो स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस. टॉपिक इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. What is economic value added? This is a performance measurement tool. It is a performance measurement tool used for evaluating the company's performance. What is EVA and MVA? MVA भी सुना होगा आपने, market value added. Okay. Economic value added is the difference between the total cost of funds and the operating income after taxes. This is the difference between cost of funds and operating income. The formula for capital turnover. कैपिटल टर्नओवर का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है. सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट. सेल्स मार्जिन, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. Okay, next formula, ROI. These are the traditional formulas which are used from many years. We are using these formulas: sales margin, return on investment, profit upon investment into 100. Okay, but EVA concept is new. EVA is a modern technique. We calculate the difference between the total cost of funds. If you see the inner bracket, capital employed into WACC, this is the cost of funds. If you are raising debt capital, you have to pay debt interest. If you are raising equity capital, you have to pay dividend. So cost of funds you will deduct from the operating income. This income is operating income, only from the business income. Only from the business income you will deduct the cost of funds of the project. So cost of acquiring the funds is measured by WACC, weighted average cost of capital. If EVA is positive, after calculating this, you will get positive answer or negative answer. If it is positive, that means company is adding the wealth to the shareholders. Company is adding to the wealth of shareholders. If EVA is negative, it implies that company is eroding the existing value. Eroding means reducing the existing value of shareholders. Creating wealth if it is positive. Eroding wealth, eroding the existing value, that is called as negative EVA. So positive EVA means company is good, performing good, and EVA is negative, that means company is not performing well. Is it clear? So what we are going to check, whether it is creating wealth for shareholders or not. Okay, so difference between the total cost of funds and the operating income. इसलिए इसका जब आप सेंटेंस में फ्रेम करोगे तो EVA को आप क्या लिखोगे? EVA is the difference between the total cost of funds. This is total cost minus total cost of funds and the operating income after tax. Operating income after tax. आपको चाहिए तो आप इनकम आफ्टर टैक्स लिख सकते हो, बट ऑपरेटिंग भी वर्ड लिखना जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट, NOPAT. ओके, now first question, note down. From the following data, calculate the missing figures. Sales value is not given. Income is also not given. Question mark. ये हमें find out करना है. Capital employed 6 lakhs.
Sales margin 25%. Capital turnover is not given. इनकम अपॉन सेल्स वैल्यू करेंगे तो सेल्स मार्जिन आएगा, पर दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है, इनकम भी नहीं दिया है, सेल्स वैल्यू भी नहीं दिया है, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट एनी अदर वैल्यू. कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला अभी बताया था, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. सेल्स वैल्यू नहीं दिया है, कैपिटल टर्नओवर भी नहीं दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लोग यूज नहीं कर सकते. सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROI, ROI is 20%. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%. अब देखो यहाँ पर ये 20% है. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट. इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 6 lakh and profit from the investment is 20%. So two things are given. Investment is given, capital employed is given, ROI is given 20%. 6 lakh का 20% कितना आएगा? 6 lakh का 20%. Tell me in the chat box. Ishan, Ashish, tell me answer in the chat box. One lakh 20,000 Riya and Sachin Dubey. सबसे पहले आंसर दिया है नमन जैन. 6 lakh का 20%, 1,20,000. सो इनकम आपका आ जाएगा 1,20,000. इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो इनकम वैल्यू जो सेकेंड नंबर है उसके सामने आप लिखोगे 1,20,000. ओके. ईवीए नहीं दिया हुआ है, ईवीए हम लोग को खुद निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईवीए? इनकम, इनकम हम लोग को मिल गया 1,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. WACC दिया है क्या? WACC देखो दिया है, WACC 8%. कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 6 लाख के ऊपर 8%. कैलकुलेट करो, 6 लाख के ऊपर 8%. अगर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालना है, जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स रेस किए हैं, डेट और इक्विटी से रेस किए होंगे. 6 लाख का कैसे इन्वेस्ट किए? डेट से रेस किए या तो इक्विटी से रेस किए. डेट प्लस इक्विटी 6 लाख है और 6 लाख का 8% WACC. कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालो. कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालेंगे? 6 लाख के ऊपर 8%. ये इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ये डेट कैपिटल से पैसा आया और इक्विटी कैपिटल से, ये दोनों रेज्ड अमाउंट है. 6 लाख के अंदर डेट भी है, इक्विटी भी है, और उन दोनों का कॉस्ट मिला के, केडी और केई का कॉस्ट मिला के, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों को मिला के 8% है. 48,000. ओके. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ROI से स्टार्ट किया. स्माइलिंग पिक्चर डाला है मैंने यहाँ पे. हमने पूरे क्वेश्चन का बेस ROI से स्टार्ट किया. 6 लाख का 20% निकाला, 1,20,000 इनकम मिला. 1,20,000 के बाद हमने सेल्स मार्जिन निकाला. सेल्स मार्जिन 25% है, तो 1,20,000 को डिवाइड बाय 25% करो. 1,20,000 divided by 25%, you will get sales value. Sales margin is equals to income upon sales value. इनकम पता हो गई हमें 1,20,000 है,
1,20,000 को 25% से डिवाइड करो. व्हाट इज द आंसर? कर रहे हो? हेलो. 6 lakhs को, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1,20,000 को 25% से डिवाइड करो. इनकम आया 1,20,000, उसको 25% से डिवाइड करोगे तो 4,80,000 सेल्स वैल्यू आ जाएगी. आशीष 30,000 कैसे आया? पहले ROI यूज किया 20%, 6 लाख का 20% निकाला, इनकम आ जाएगा 1,20,000. 1,20,000 को 25% से डिवाइड करो. क्यों कर रहे हैं डिवाइड? पहले ROI से हम लोग ने प्रॉफिट निकाला 1,20,000. ROI इज 20%, प्रॉफिट पता नहीं है हमें. प्रॉफिट हम लोग को निकालना है. 6 लाख हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू 100, प्रॉफिट इज 1,20,000. यहाँ तो आप प्रॉफिट को इनकम लिखो. क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है तो इनकम लिखो. मैंने प्रॉफिट लिखा है ऊपर, लेकिन आप इनकम लिख सकते हो. ROI इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट. आप लोग इनकम ही लिखो, क्वेश्चन में इनकम लिखा है ना. 20% इज इक्वल टू इनकम अपॉन 6 lakhs. 6 lakh इंटू 20%, क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 lakh इंटू 20%, प्रॉफिट 1,20,000. सेकेंड फॉर्मूला, सेल्स मार्जिन परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज साइन डालो. सेल्स मार्जिन परसेंटेज साइन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स. प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. 25% इज इक्वल्स टू 1,20,000 अपॉन सेल्स इनटू 100. क्वेश्चन में सेल्स मार्जिन दिया है, सेल्स मार्जिन दिया हुआ है. प्रॉफिट हमने निकाला अभी 1,20,000 अपॉन सेल्स इनटू 100. Sales is equals to 1,20,000 divided by 25%. This is the value of sales. Sales value 4,80,000. Next formula, capital turnover. कैपिटल टर्नओवर का मतलब टर्नओवर रेशियोज में हमेशा न्यूमरेटर सेल्स होता है और आंसर हमेशा टाइम्स में आता है. सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 नहीं करते हैं. टर्नओवर रेशियोज में आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है. कैपिटल टर्नओवर इज इक्वल्स टू 4,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख. कैपिटल टर्नओवर इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स. 0.8 टाइम्स. नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ EVA. इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट, माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स. कॉस्ट ऑफ फंड्स है ये ब्रैकेट के अंदर. कॉस्ट ऑफ फंड्स जो डेट कैपिटल रेज किया है और इक्विटी कैपिटल रेज किया है, दे आर गोइंग टू चार्ज यू सम कॉस्ट. कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेट और इक्विटी दोनों है. WACC के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों इंक्लूडेड है. 1,20,000 माइनस ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8%, ब्रैकेट क्लोज. EVA is equals to 1,20,000 minus 48,000.
EVA is equals to 72,000. फर्स्ट हमने ROI निकाला, ठीक है। ROI के वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ROI और कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने सेल्स फिगर, इनकम आ जाएगी, तो इनकम से हम लोग सेल्स मार्जिन को, जब इनकम और सेल्स मार्जिन को डिवाइड करेंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेल्स वैल्यू पता चल गई और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, कैपिटल टर्नओवर निकालना है, तो सेल्स वैल्यू 4,80,000 यूज करके डिवाइड बाय 6 लाख किया, कैपिटल टर्नओवर आ गया। उसके बाद EVA निकाला हमने, WACC तो दिया था क्वेश्चन में। अब आपकी इनकम जो है उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को माइनस किया। जब आप अपनी इनकम आफ्टर टैक्स में से, ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स में से कॉस्ट ऑफ फंड्स को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर EVA पॉजिटिव आ रहा है, इस सम के अंदर EVA पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स द कंपनी इज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स।